கன்னி ராசி, கன்னி லக்னம். உத்திரம் 2, 3, 4, அஸ்தம், சித்திரை 1, 2ஆம் பாதம். இவர்கள் கன்னி ராசி. இதே ராசியிலே லக்னமாக பிறந்தவர்கள் இருவருக்கும் கேட்க வேண்டிய ஸ்லோகங்கள். ஏவம் கிருகாஸ்ரமே ஸ்தித்வா விதிவஸ்நாதகோ த்விஜகா வனே வசேத்து நியதோ யதாவத் விஜிதைந்திரியக கிருகஸ்தஸ்து யதா பஸ்யேது வலி பலிதமாத்மனக அபத்யஸ்யைவ சாபத்யம் ததாரண்யம் சமாஸ்ரயேத் சந்த்யக்ஞக்ராம்யமாகாரம் சர்வம் சைவ பரிச்சதம் புத்ரேஷு பார்யாம் நிக்ஷிப்ய வனம் கச்சேத் சகைவ வா அக்னிஹோத்ரம் சமாதாய கிருக்யம் சாக்னிபரிச்சதம் கிராமாதரண்யம் நிஸ்ரோத்ய நிவசேன்னியதேந்திரியக முன்யன்னைர்விவிதைர்மேத்யைஹி சாகமூலப்பலேன வா ஏதானேவ மகாயஜ்ஞான் நிர்வவேத் விதிபூர்வகம் வசீத சர்மச்சீரம் வா சாயம் ஸ்நாயாத் பிரகேததா ஜடாஸ்ச பிப்ருயான் நித்யம் ஸ்மஸ்ருளோ மணகானி ச யது பக்ஷ்யம் ஸ்யாத் ததோ தத்யாத் பலிம் பிக்ஷாம் ச சக்திதகா அப்மூல பல பிக்ஷாபிரர்ச்சயேதாஸ்ரமாகதானே ஸ்வாத்யாய நித்யயுக்தக ஸ்யாத்தாந்தோ மைத்ர சமாகிதக தாதா நித்யமனாதாதா சர்வபூதானுகம்பக வைத்தானிகம் ச சுகுயாதக்னிஹோத்ரம் யதா விதி தர்சமஸ்கந்தயன் பர்வ பௌர்ணமாசம் ச யோகதக ருக்ஷேட்ய ஆக்ரயணம் சைவ சாதுர்மாஸ்யானி சாகரேத் துராயணம் ச க்ரமசோ தக்ஷஸ்யாயனமேவ ச வாசந்த சாரதைர்மேத்யைர்முன்யன்னைः ஸ்வயமாஹ்ருதைः ரோடாசாம்ச்சரும்ச்சைவ விதிவத் நிர்வபேத் மிருதகே தேவதாப்யஸ்து ததுத்வா வன்யம் மேத்யதரம் ஹவிः சேஷமாத்மனி யுக்ஞீதலவணம் ச ஸ்வயம் கிருதம் ஸ்தலஜௌதகசாகானி புஷ்பமூலபலானி ச மேத்ய விருட்சோத்பவான் யத்யா ஸ்நேகாம்ஸ்ச பலசம்பவான் வர்ஜயன் மதுமாம்சம் ச பௌமானிக கவனானி ச பூஸ்த்ருணம் சிக்ருகம் சைவ ஸ்லேஷ்மாதகபலானி ச தஜேதாஸ்வயுஜே மாசி முன்யன்னம் பூர்வசஞ்சிதம் ஜீர்ணானி சைவ வாசாம்சி சாகமூலபலானி ச ந பாலகிருஷ்டமஸ்னி யாதுஸ்ருஷ்டமபி கேனசித் ந கிராம ஜாதான் யார்த்தோ அபிமூலானி ச பலானி ச அக்னிபக்வாசனோ வா ஸ்யாத் காலபக்வபுஜேவ வா அஸ்மகுட்டோ பவேத்வா அபி நந்தலோ லுகலீகோ அபி வா சத்யப்ரக்ஷாலகோ வா ஸ்யான் மாசசஞ்சயிகோ அபி வா ஷண்மாசனீச்சயோ வா ஸ்யாத் சமானீச்சய ஏவ வா நக்தம் சான்னம் சமஸ்னீயாத்திவா வா அஹ்ருத்ய சக்திதக சதுர்த்தகாலிகோ வா ஸ்யாத் ஸ்யாத்வாப்யஷ்டமகாலிகக சாந்திராயண விதானைர் வா சுக்லகிருஷ்ணே ச வர்த்தயேத் பக்ஷாந்தயோர்வா அப்யஸ்னீயாத்யவாகும் க்வதிதாம் சக்ருத் புஷ்பமூலபளைர்வா அபி கேவலைர்வர்த்தயேத் சதா காலபக்வைः ஸ்வயம் சீர்ணைர்வை கானசமதே ஸ்திதக பூமௌ பரிவர்த்தேத திஷ்டேத்வா பிரபதைர்தினம் ஸ்தானாசனாப்யாம் விகரேத் ச வனேஷு பயன்னபக
ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्वर्षास्वप्रावकाशिकः आर्द्रवासास्तु हेमन्तो क्रमशो वर्तयंस्तवः उपस्पृशं स्त्रिशवनं पितॄन् देवांश्च तर्पयेत् तपश्चरंश्चोक्रधरं शोषयद्देहमात्मनः अग्नीनात्मनि वैतानान् समारोप्य यथा विधिः अनग्नीर निकेतकस्यान् मुनिर्मूलपलाशन अप्रयत्नः सुखार्तेषु ब्रह्मचारी दर आशयः शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमागरेत् गृहमेदिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ग्रामादाहृत्य वा अश्नीयातष्टौ ग्रासान्वने वसन् प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा एताश्चान्याश्च सेवेददीक्षा विप्रो वने वसन् विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिक्तया श्रुतीः ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः विद्या तपो विवृद्ध्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये अपराजितां वा अस्ताय व्रजद्दिशमजिग्मगः आनिपादात् शरीरस्य युक्तो वार्यनीलाशनः आसां मगर्षिचर्याणां त्यक्त्वा अन्यतमयातनं वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते वनेषु च विगृह्यैवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा लङ्कान् परिव्रजेत् आश्रमादाश्रमं गत्वा कुतहोमो जितेन्द्रियः भिक्षाबलिपरिश्रान्तप्रव्रजन् प्रत्यवर्तते ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो वृजत्यदः अधीत्य विधिवत् वेदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मदः इष्ट्वा च शक्तिदो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुदान् अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन् वृजत्यदः प्राजापत्यं निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मण प्रव्रजयत् गृहात् यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः यस्मादन्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पत्त्यते भयं तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चनः अकारादपि निष्क्रान्तः पवित्रो वचितो मुनिः समुपोडेषु कामेषु निरपेक्ष परिव्रजेते एक एव चरेन्नित्यं सिद्ध्यर्थमसहायवान् सिद्धिमेकस्य सम्पश्यन्न जगाति न हीयते अनग्निर निकेतकः स्याद्ग्राममन्नात्तमाश्रयेत् उपेक्षको शङ्कुशुको निर्भावशमायिदः कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता कुचैलं समदा चैव सर्वस्मिन्ने तन्मुक्तस्य लक्षणं नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितं कालमेव प्रतीक्षेत निर्वेशं पृथको यथा दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मणपूतं समाचरेत् अधिपातां स्थितिक्षेद नावमन्येत कंचन न चैमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीद केनचित् कृत्यन्तं न प्रतिकृत्य दाकृष्टकुशलं वदेत् शब्दद्वारावकीर्णां च न वाचमण्डुलां वदेत् अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः आत्मनैव सगा येन सुखार्ती विचरेदिगा न चोत्पादनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेद गर्गिचिदे न तापसै ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि वा स्वभिः आकीर्णं भिक्षुकैर्वा अन्यैरकारमुपसंव्रजेत्
क्लुप्तकेसरकस्मश्रुपात्री दण्डी कुसुम्बवाने विचरे नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्व्रणानि च तेषामद्भिस्पृतं शौचं शमसानामिवाध्वरे अलाभुं दारुपात्रं च मृण्मयं तवैतलं तदा एतानि यदि पत्राणि मनुस्वायम्भुव अब्रवीत् एककालं चरेद् वैष्टं न प्रसज्येत विस्तरे वैष्टे प्रसक्तो हि यदिर्विषयाष्वपि सज्जति विदुमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने वृत्ते शरावसम्पादे भिक्षां नित्यं यदिश्चरेद् अलाभेन विशति स्यात् लाभे चैव न हर्षयेद् प्राणयात्रिकमात्रगा स्यात्मात्रा सङ्गाद्विनिर्गतः अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्से दैव सर्वशगा अभिपूजितलाभैश्च यदिर्भुक्तो अभिपत्यते अल्पान्नाप्यपरागेण रगस्थानासनेन च क्रियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत् इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषशयेन च अहिंसया च भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते अवेक्षेदगतिर्नॄणां कर्मदोषसमुद्भवाः निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षय विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगं च तदा अप्रियैः जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनं देहादुत्क्रमणं चात्मात् पुनर्गर्भे च सम्भवं योनिकोटिसहस्रेषु श्रुतिश्चास्यान्तरात्मनः अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणां धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम् सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मना देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वदमेषु च दूषितो अभिचरेद्धर्मं यत्र दत्राश्रमे रतः समसर्वेषु भूतेषु च निलिङ्गं धर्मकारणं फलं कदग वृक्षस्य यद्यप्यम्बू प्रसादकं न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनिवासदा शरीरस्यात्यय चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत् अग्नारात्या च याज्ञन्तून् हिनस्त्यज्ञानतो यतिः तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थं प्राणायामान् षडाचरेत् प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रय अपि विधिवत् कृताः व्याघ्रदिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तवगा दग्यन्ते मायमानानां धातूनां हीयतामलाः तदेन्द्रियाणां दग्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् प्राणायामैर्दहेत् दोषान् धारणाभिश्च कल्पिषम् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ध्यानयोगेन सम्पश्यद्गतिमस्यान्तरात्मनः सम्यक् दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते अहिंसेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपसश्चरणैः शौक्रैः साधयन्तीग तत्पदम् अस्ति स्थूणं स्नायुयुधं मांसशोणीतलेपणं चर्मापणद्धं दुर्गन्धिपूर्णं मूत्रपुरीशयोगो जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरं रजस्वलमनित्यं च भूताभासमिवं त्यजेत् नदीकूलं यदा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यता तदा त्यजन्निवं देहं कृच्छ्राद्ग्रागात् विमुच्यते प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतं विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनं यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृशः तदा सुखमवाप्नोति प्रहत्य चैक च शाश्वतम् अनेन विधिना सर्वां त्यक्त्वा सङ्गान् शनैः शनैः सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ध्यानिगं सर्वमेवैदत्यते तदपि शब्दितं न ज्ञन्नद्यात्मविद्कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते अधियज्ञं ब्रह्मजपेदादिदैविकमेव च
आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यद् इदं शरणमज्ञानाम् इदमेव विजानताम् इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम् अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति योद्विजः स विदुहैव पाप्मानं परं ब्रह्मादिगच्छति एष धर्मो अनुशिष्टो वो यदीनां नियतात्मनां वेदसन्न्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधता ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यदिस्तदा एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः सर्वे अभिक्रमशस्त्वेते यदा शास्त्रं निषेविताः यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिं सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ स त्रीनेतान् बिभर्तिः यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितं तदैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितं चतुर्भिरभिचैवैदै नित्यमाश्रमभिर्द्विजैः दशलक्षणको धर्मस्येवितव्यः प्रयत्नरः धृतीक्षमातमो अस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणं दशलक्षणानि धर्मस्य ये विप्रागा समधीयते अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिं दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन् समाहितः वेदान्तं विधिवत् श्रुत्वा संन्यसेदनृणोद्विजः संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत् एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमस्पृहः संन्यासेनापगत्यैनः प्राप्नोति परमं गतिं यशवो अभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः पुण्यो अक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मं निबोधतः